और तो बस आज लड़ाई हो रही है, बात हुई कॉन्ट्रैक्टर से। लड़ाई हो रही है, लड़ाई साझा लड़ाई से लड़ाई हो रही है। हाँ हाँ। एक कर लो, 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाओ। मैं 2 सप्ताह में, आज से 2 सप्ताह समझो। हम्म। के काम संभाली ना, तो आई वाज सो हैप्पी विथ हिम हर कि वो इतना अच्छा काम संभाल पा रही है। वाह, बहुत सुंदर। इट इज रियली मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी कि वी आर गेटिंग सच अ यंग टैलेंट पूल विथ मी। ठीक बात है, कोई न कोई चाहिए ही वो। हाँ लर्निंग प्रोसेस को एक साधन भी है हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असली। हम्म। और अपने जो गोल्डन चर्चा का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे ईस्टर्न इंडिया के जितने भी गांव से लेकर शहर तक के जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनको मौका नहीं मिल सकता या फिर हमको कनेक्ट नहीं करते सबको, उनको कैसे हम जोड़ें ताकि सब एकदम। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे पाए उसको, और वहां से हम्म। एक अच्छे अच्छे स्पीकर्स बाहर निकले, टैलेंट बाहर निकले। तो हमारे ईस्टर्न इंडिया को हम पूरा इक्विप करना चाहते हैं विद टैलेंट पूल। तो टैलेंट हाँ, तो है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म में देना चाह रहा हूँ। तो हमने ऐसे 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा बनाया है अलग अलग एरिया से कि जिसको हम फोर्टिफाई करके उनको सोसाइटी में प्रेजेंट करें। बहुत बढ़िया, इंस्टीट्यूट बहुत। में बैठा है क्या? हाँ हाँ, अभी इंस्टीट्यूट में ही हूँ। हम्म। हाँ यस वो भैया। तो भाई 365 दिन 24 घंटा इंस्टीट्यूट में रहो हो रहा हाँ है। भैया वो आज्ञा भी रहने को भी चाह रहा और आई है। आई 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 अभी तो नाम विष्णु है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक। ओमनी प्रेजेंट को नाम भी विष्णु का है, विष्णु। फिर भी ब्यास गद्दी पे तो आप ही बैठेंगे भैया। I find Rashi on the Zoom call, so I request Rashi to please start the session. Yes, sir. And अभी तो हाँ राशि अटेंडेंस ही नहीं आया तुम्हारा यार। ठीक है भैया, धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, हम्म। धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। ये तो भगवत चर्चा है ना, तो हाँ अच्छी चीज लोगों को कम पसंद आती है। तो ये पहला, हाँ पहला सेशन है हमारा। मैंने अभी से चालू, मतलब आज से चालू ही किया है इसको, नॉन टेक्निकल फर्स्ट। आइटम। हाँ इट्स फर्स्ट क्लास आई हैव स्टार्टेड। ठीक है। हाँ Okay. राशि प्लीज। Yes, sir. So, today's topic is spiritualism and professionalism. Today, we have with us a distinguished guest speaker, CA Nirmal Kumar Bothra. I would like to extend a warm welcome to you, sir, and respectfully request you to share a few words with us. Should I start? हाँ। यस भैया। Yes, sir. Good afternoon, Chairman Vishnu Tulsian, Rashi Sonthalia, my friend R.K. Vyas is my old friends. We started practice together in in mercantile. 1985 or 84 perhaps. Hmm. So he's well known to me. He's very good speaker and very have a thorough knowledge, and I have seen from very beginning on Saturday, every Saturday he held the uh, discussion on various topics among few groups of 6 or 7 people. Now it has become as a BBD, Chartered Accountant Study Circles. But the core group was 6 or 7 group, 7 person. So regarding today's topic is profit. Pro, uh, Regarding today's topic is spiritualism in profession. It is not just related to to religion. We as a chartered accountants are fast-paced
deadline driven, and we have the very tight schedule in 3-4 months. So we should be calm, patient, and with thorough knowledge, so that we can tackle in difficult situation. So the spiritualism learn us that we should be calm, patient, and with thorough knowledge. We, as the chartered accountants, are socials. I have seen, you have also seen in many organizations, all the chartered accountants are doing social works. Now, I have seen the international director of Lions Club is AP Singh, who is also a chartered accountant and doing social work, and also he is doing profession and doing good professional works of professional ethics. So in other organization also, chartered accountants are doing, wherever you will not find any doctor, not find any too much, in very few engineers, very few MBA or other professionals, but you will find CA in every organization where the social work is done. So that is the spiritualism the chartered accountants has inherited, strength of spiritualism. So we, in profession also, our ethics, professional ethics also tells us the boundaries in which we can do the work, and what are the limitations, what are the ethics value. So we value the ethics in the profession with thorough knowledge, and while dealing in the professions. As we are even in under pressure, we are doing lot of job with patience, compassions, and dealing with clients, staff, various organization, governments, and others. In all organization, people have faith in chartered accountants and they rely their balance sheets. So we should uh, be truthful. So the spiritualism is very essential part of our life, and we have to make the balance through spiritualism. Spiritualism is not a religion, but it is the value, it ethics, knowledge, and so and so forth. So I would in like Mr. Vyas to speak on this topic, and hand over the mic to Mr. Vyas. Thank you, Nirmal sir. I would just like to give a brief introduction of Mr. Vyas. So I'm delighted to introduce Mr. C. Rajendra Kumar Vyas, a highly respected professional with over 4 decades of experience. He's a qualified chartered accountant at a young age of 21, and he's also an associate member of the Institute of Company Secretary of India. His areas of expertise span across audit, corporate affairs, business reorganizations, merger and acquisition. He has been deeply associated with EIRC, serving in key roles across various committees of professional development, taxation, and corporate affairs. He is the founder president of the BBD Bar Professional Association, a network with more than 500 CAs and legal profession, and has co-authored books on partnership and direct tax. Mr. Vyas is a prolific speaker and thorough leader, having addressed numerous seminars and workshops across India on taxation, corporate affairs, and contemporary economic issues. His contribution to the profession through writing, literature, and leadership roles has made him an inspiration to many. I would like to invite him
to speak a few words on the topic. Thank you, sir. ओके, धन्यवाद। ओम गं गणपतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। At the outset, I thank Vishnuji Tulsyan, the chairman of AIRC, and my brother Nirmalji Bothra, and today's anchoring done by Sarasi Santhalia and the other co-attendees. Today's topic is on spirituality. Friends, we must understand what is spiritualism. That is अध्यात्म। अध्यात्म का हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें आता है अधि प्लस आत्मा। आत्मा के ज्ञान का परिप्रेक्ष्य ही हमको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। और हमारी जो बाइबल है, द मोस्ट प्रिमिटिव स्क्रिप्चर बुक ऑन स्पिरिचुअलिज्म इज गीता, क्योंकि गीता का विशेष महत्व हमारे भारतीय सनातन धर्म में इसलिए है कि ये भगवान श्री कृष्ण की मंत्रमय वाणी है। हम जितने अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उस पर व्याख्याएं करते हैं, वो सभी किसी न किसी के द्वारा रचित है, चाहे वो वेद व्यास के द्वारा है, चाहे अन्य हमारे संत महात्माओं के द्वारा संकलित है। जैसे वेद भगवान के निश्वास हैं, उनके श्वास माने जाते हैं, इसलिए वेद को नारायण कहते हैं। उस नारायण की वाणी ही मंत्र स्वरूप के अंदर में गीता में है। और भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक के अंदर में अध्यात्म की परिभाषा दी है। व्हाट इज अध्यात्म? क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये भगवान की वाणी। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते। परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, इसको हम अध्यात्म कहते हैं। ये भगवान का अपना वाणी है, माने अपने स्वभाव को जानना, अपने स्वभाव में अवस्थित होना, ये अध्यात्म है। इसीलिए उसका नाम है अधि आत्मा, माने आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म विद्या का, आत्म तत्व का विवेचन जिस विद्या के माध्यम से प्राप्त हो उसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अब ये आता है कि हम एज ए प्रोफेशनल्स हाउ वी फील, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर में अध्यात्म में हम कैसे उसको समझ सकते हैं कि हम अध्यात्मवादी बने कि नहीं। इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम कभी भी पास्ट से और फ्यूचर से कनेक्ट नहीं होते हैं। अध्यात्म में हमेशा प्रेजेंस का जो भाव है वो वर्तमान काल का ही है, क्योंकि जब भी हम शोक लेते हैं या भय लेते हैं तो इट परटेन्स टू पास्ट, दैट इज शॉक। और भय जो है, फियर है, दैट परटेन्स टू फ्यूचर। इन दोनों शोक और भय के द्वंद्वों से मुक्ति के नाम का भाव ही अध्यात्म है। तो जब हम प्रेजेंट भाव में अवस्थित होते हैं तब हम स्पिरिचुअल बनते हैं। दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली डिटेच फ्रॉम फियर, that are completely detached from bondage, that means carry on activities. Next क्या है, उसका second virtue है, when we search for inner freedom, that is well-beingness and peace of mind. अध्यात्म में क्या आता है, हमें आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म काम हम बनते हैं, आत्म तृप्त हम बनते हैं, और हमारे अंदर में जो हमारी जो बेसिक पोस्टुलेट्स डेवलप होनी स्टार्ट होती है स्वभाव में, वो होती है काइंडनेस की। हम दूसरे के प्रति द्रवित होते हैं, हम दूसरे के प्रति दयालु बनते हैं, दूसरे के प्रति वेलबींग की भावना हमारे बीच में डेवलप होती है। थर्ड है इज द लविंग रिलेशनशिप विद सेल्फ, विद अदर्स एंड समथिंग बियॉन्ड। हम जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप से भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमको जो कुछ भी बेसिक ऑब्जेक्ट्स लाइफ का प्राप्त करना है
तो उसका मोस्ट परमानेंट व्हीकल हमारा अपना ही स्वभाव है, और दूसरों के प्रति भी हम प्यार और स्नेह रखते हैं, वेलबींग उसके लिए रहते हैं, एंड गिविंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्योंकि आप जब भी स्पिरिचुअल आदमी को देखेंगे, हर आदमी उसको अपना मानता है और वो हर आदमी को अपना मानता है। तो ये बिलोंगिंगनेस की जो भावना है, ये स्पिरिचुअल मेंटेलिटी का सबसे बड़ा बेसिक पोस्टुलेट माना जाता है। सेकेंड इज दैट मीनिंग एंड पर्पस इन थॉट्स दैट वी वैल्यू। दैट मीन्स यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप में कभी भी नेगेटिविज्म की भावना प्रवेश करती ही नहीं है स्पिरिचुअलिज्म के अंदर। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलते हैं, तो आपका जो रिजल्ट भी है ओरिएंटेड, वो हमेशा सही माना है। एंड नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस इन लिविंग, फाइंडिंग होप अमंग्स द पेन एंड डिफिकल्टीज। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है कि हम कभी भी घबराते नहीं, हम कभी भी अवसाद में, विपत्ति में, तकलीफ में, और हमारे पास में जब विभिन्न तरह की आपदाएं, विपदाएं हमको घेरती है, तो स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी डिटेच नहीं होता है। वो हमेशा कंसंट्रेटेड होकर के अपने पाथ के ऊपर में अपनी एनर्जी को लगाता है और पॉजिटिव आउटलुक लेकर के भगवान के ऊपर में आत्मविश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए उसकी सारी समस्याओं का समाधान सही ढंग से हो जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? पैसेज टू परफेक्शन। हम स्पिरिचुअलिज्म को जब प्रोफेशन से जब लिंक करेंगे, तो हम देखेंगे कि व्हेन वी वांट्स टू बिकम ए आउट एंड आउट प्रोफेशनल, these basic postulates of spiritualism has to be adhered to in our professional discharging duties. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्पिरिचुअल होने से यू विल बी मोर कंपेशनेट। आपके पास हमेशा एक्सपीरियंस मोर कंपेशन, दया आएगी। यू विल डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, यू फीलिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड। आप में आभार आएगा। यू विल ऑलवेज ट्राई टू थैंक अदर्स when they do something for you। तो उसमें आभार प्रकृति, ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, वो हमेशा एक स्पिरिचुअल पर्सन्स के अंदर में आता है। he always tries to improve social connections, he has always better coping up with stress, and ultimately it leads to the greater happiness। तो वर्च्यूज क्या है? ऑनेस्ट, सेकंड इथिकल, थर्ड ट्रांसपेरेंट, एंड मोस्ट फोर्थ इज मोर परफेक्शंस। यही बेसिक पोस्टुलेट हमको एज ए प्रोफेशनल्स चाहिए, वो हमको हमेशा चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म में हमेशा आप ये मान करके चलिए, आपको हमेशा मैं को नहीं भूलना है, हमको मैं से मुक्त होना है। आत्मभाव क्या है? आत्म तत्व आपको ज्ञान देता है कि जीव का परमात्मा से योग है। इसलिए वो जब उसका अंश हुआ, तब वो अवसादी क्यों बनेगा? वो विपदा में क्यों घिरेगा? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। जब गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर अपने मुखारविंद से कहते हैं पुरुषोत्तम योग में कि जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंशी हैं। जब भगवान अमृत स्वरूप है, तो आप अमृत के बिंदु हुए कि नहीं? इसीलिए हमारे अध्यात्म में, सनातन धर्म में ये उक्ति है, अमृतस्य पुत्रः। एक हर जीव, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बालक है या बालिका है, या उद्भिज है, जड़ है, पशु है या पक्षी है, हमारे जितने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सब भगवान की प्रकृति के ही अंग हैं। जब वो भगवान के स्वभाव में अपने आप को अवस्थित करते हैं, गेट कनेक्टेड विथ हिम, उनको ब्लिस, आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद से परमानंद और परमानंद से ब्रह्मानंद, थर्ड स्टेज ऑफ आनंद, दैट इज ब्लिस इन हिमसेल्फ ही गेट्स। ये स्पिरिचुअलिज्म की सबसे बड़ी बात है। तो खुद के बारे में जानना, अपने स्वभाव को समझना, यही अध्यात्म है। तो जब हम उसको समझ लेते हैं, तो अनंतो गत्वा हमारे अंदर में ये भाव आ जाता है कि हम कभी अवसाद से, हम कभी विपत्ति से, हम कभी डिफिकल्टी से अपने आप को ग्रसित न करें। और जैसे ही हमारे में पॉजिटिव आउटलुक आता है, हमारे कार्य करने की जो शैली है, एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एज ए प्रोफेशनल,
अल्टीमेटली इट लीड्स टू स्किलफुलनेस। उसके अंदर में हमेशा एक्सेलेंस आती है, और एक्सेलेंस आने से हमारे परफॉर्मेंस एज ए प्रोफेशनल हमेशा बढ़िया से बढ़िया बन जाता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वेद हमारे प्रमुख रूप से प्रिमिटिव स्क्रिप्चर्स माने गए। वेद से ही उपनिषद आए, वेद से ब्रह्मसूत्र बने, वेदों से पुराण बने, वेदों से इतिहास बने, वेद से मीमांसाएं बनी, और इन सभी सूत्रों का सारभूत भाव ठाकुर ने गीता के 700 श्लोकों के अंदर में चैप्टर 1 टू चैप्टर 18, 1 से 18 अध्याय के अंदर में स्वयं अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रणांगन में, बैटलफील्ड के अंदर में, क्योंकि हम भी हमेशा बैटलफील्ड में रहते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ जो है इज ऑलवेज बैटलफील्ड। वी हैव टू ऑलवेज क्वेंकर समथिंग। हमको कुछ ना कुछ पर विजय प्राप्त करना है, हमको किसी न किसी को पराभव करना है। तो उस लिए स्पिरिचुअलिज्म हमको अल्टीमेटली लीड करती है। तो आज सिचुएशन ऐसा है कि वेद हमको 2 विद्याएं प्रदान करती है। वन इज द मटेरियलिस्टिक साइंस एंड अनदर प्रोवाइड द स्पिरिचुअल साइंस। हम आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल साइंस की है, क्योंकि वेद में भी जब हम डिटेल्ड एनालिसिस में सनातन धर्म में जाते हैं तो आज के दिन उपलब्ध इज अराउंड 1 लाख स्टैंजास, दैट इज नोन एज ऋचा। वेद की ऋचाएं कहते हैं, इनको हम श्रुतियां भी कहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु विश्व परंपरा के अंदर में गुरु अपने शिष्यों को वेद का पारंगत बनाने के लिए जब पारायण करवाते थे तब उनको हम वेद के सूत्र देते थे। तो हमारे वेद में आज के दिन उपलब्ध 1 लाख ऋचाएं है, 1 लाख स्टैंजाज हैं। तो वेद की ऋचाओं का जब हम बाइफर्केशंस करते हैं तो उसमें करीब 80,000 ऋचाएं हैं, वो हमारी कर्मकांड की है। 16,000 ऋचाएं हमारी है भक्ति कांड की, जिसको हम उपासना कांड कहते हैं। 4,000 हमारी ऋचाएं वेद की हैं, वो है ज्ञान कांड की। तो जब हम पिरामिड के स्वरूप में जाते हैं तो हाईएस्ट पार्ट ऑफ दैट पिरामिड कंसिस्ट ऑफ कर्म योगा, जिसके अंदर में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आता है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्याएं हमारे कर्मकांड देते हैं। उसमें हमको प्रोहिबिटिव लिस्ट भी बनाई हुई है कि हे जीव, तुमको ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य तुम्हें करना है, ये हमें कर्मकांड की व्याख्या देती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का भी जो विस्तारीकरण है, एम्प्लीफिकेशन है, जैसे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इवन हमारी जितनी भी शल्य चिकित्सा जिसको हम सुश्रुत कहते हैं, सर्जरी तक की माइन्यूटेस्ट विद्याएं हमारे वेद के अंदर में उपलब्ध है। उसी का विस्तारीकरण हमारे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर में, फिजिकल साइंस के अंदर में आया है, और उपासना कांड के अंदर में हमारे विभिन्न धर्म की व्याख्याओं का वर्णन, ज्ञान कांड के अंदर में यति और सन्यासियों का जो मार्ग है वो आता है। तो सिचुएशन ये है कि हमारे वेद भी कर्म के परफेक्शन के लिए डू और डोंट की व्याख्या देते हैं। तो अंडरलाइन थीम इन वेदास इज ऑल्सो what is ethical, what is unethical. So ethical standards comes from our Sanatan dharmas. That means spiritualism leads to perfection. Spiritualism leads to ethical standards. Spiritualism leads to honesty. Spiritualism leads to transparency. That means honesty, integrity. और excellence का जो भाव हमारा प्रोफेशन भी एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट expect from the doers, members, while discharging their duty either as a professional or as a CFO in any corporate house, it is required that they should adhere to spiritualism. Friends, now we want to move to now what is profession. Profession का मतलब क्या? Adhering to ethical standards, specialized knowledge, respect among public, that is honesty and integrity, skillful excellence. सिचुएशन ये है, हम प्रोफेशंस के बेसिक पिलर्स जो हम मानते हैं वो ये है कि आपका इथिकल स्टैंडर्ड्स में एडहेरेंसेस हो, तब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ कंडक्ट, एंड डिफरेंट शेड्यूल्स हैव बीन pronounced by institute,
every member, either in practice or in business or in service, has to always comply with ethical standards. Similarly, in whichever the field you want to go, you must have an excellence. That means आपके पास में उस फील्ड का हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, so that you command respect amongst the users, you command respect in the society at large, which use the statement of finances which has been attested by you. जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक एट लार्ज और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देते हैं, उनके ऊपर में उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। वो तभी हो सकता है when we have got special knowledge in that particular field, and automatically it will command respect in public, and respect in public तब ही आएगा when you are honest, when you are transparent, you discharge your duty not by fear or favor. You must be always completely aloof from fear. No one can dictate you. Similarly, you are not allured by favors given by the different stakeholders. Similarly, skillful excellence is required. आप जब तक जिस फील्ड के अंदर में हैं, जब तक आपकी समर्पित भावनाएं, डेडिकेशंस उसमें नहीं है, तब तक आपका स्किलफुल एक्सीलेंस नहीं आता है। अब मैं आपको प्रोफेशनलिज्म को जोड़ता हूं अध्यात्म से। कैसे प्रोफेशनलिज्म के अंदर में अध्यात्म का पुट आना चाहिए? वो क्यों आना चाहिए कि भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में जहां कर्मयोग की व्याख्या की है, क्योंकि हम एज ए प्रोफेशनल्स वी डिस्चार्ज आवर ड्यूटी एज ए कर्मा, तो कर्म के भाव की जो विस्तारीकरण है, व्याख्या है, वो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में की है, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। और कर्मयोग के अंदर में जो वर्णन तृतीय अध्याय में है, वो गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक के अंदर में कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम, दैट मीन्स हाउ यू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज स्किलफुली सो दैट यू डिमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल एट लार्ज, ये आपकी हमेशा उसी से आएगी। तो भगवान ने 50वें श्लोक के अंदर में जो व्याख्या दी है, वो क्या दी है? बुद्धि युक्तो जहाती है उभे दुष्कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व, योग है कर्मसु कौशलम। ये मेरी वाणी नहीं है, ये वाणी है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की। गीता के अंदर में भगवान ने वर्णन की है कि योग कर्मसु कौशलम क्यों आएगा? हे जीव, तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो, योग से। योग का मतलब क्या है? हम बेसिकली उसको समझते हैं कि हमारा आत्मा का परमात्मा से विलन की प्रक्रिया का नाम अध्यात्म में योग माना गया है। इसीलिए हमारे यहाँ गीता के अंदर में 3 योगों का वर्णन है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता के चैप्टर नंबर 2 से 6 तक हमारे कर्मयोग का विस्तारीकरण है, वर्णन है। गीता के 7वें चैप्टर से 11वें तक भगवान ने जो वर्णन किया, 12वें तक, वो भक्ति योग का वर्णन, और 13वें चैप्टर से 18वें तक भगवान ने ज्ञान योग का वर्णन किया। तो अनंतो गत्वा हमारी सिचुएशंस क्या है? हम आइदर इन 3 माध्यमों से जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि समबुद्धि रख करके पुण्य और पाप दोनों, सुकृत और दुष्कृत, क्योंकि आइदर हम सनातन धर्मी ये मानते हैं कि ये कार्य करने से या तो तुम्हें पाप मिलेगा या तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो इन दोनों से तुमको उठना है। इन दोनों लोगों को त्याग कर जहाती, जहाती है उभे, उभे माने दोनों, सुकृत है दुष्कृते, और करना क्या है? तस्मात् योग्याय युजस्व, उद्योगी तो तुम्हें बनना है। यू हैव टू बी द डूअर, यू हैव टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी एज ए प्रोफेशनल्स, बी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आइदर इन सर्विस और इन प्रैक्टिस और समवन इवन इन बिजनेस। तो क्या करना है? उसको समत्व योग से, योग के अंदर में क्या है? समत्व योग होना चाहिए। उससे कर्म में कुशलता लानी है, कर्मसु कौशलम, एक्सेलेंस, जिस फील्ड में भी हो। तो अब इसमें बात यह है कि समत्व योग क्या आता है? समत्व योग है व्हेन यू डिस्चार्ज योर ड्यूटी अनअटैच्ड, उसमें आपका कोई भी भाव प्राप्ति का नहीं है, क्योंकि भगवान ने
गीता के 3 अध्याय में जो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा भाव कर्म करने में है। जब आप उसकी फल की इच्छा को छोड़ देते हैं तब आपका कर्म योग बनता है और कर्म में एक्सेलेंस आती है। जब भी आप कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करते समय आपके मन में रिजल्ट ओरिएंटेशन रहता है, जैसे स्टूडेंट की ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं तो उस फील्ड में एक्सेलेंस प्राप्त नहीं करते। जब तक आप उसमें डिवेल्व नहीं करोगे, जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं, जैसे समुद्र में तैरना आप सीखोगे नहीं, तब आप उसकी तलहटी में जा नहीं सकोगे। ये समुद्र कितना गहरा है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसमें न जाएं, तो हम सुपरफिशियल परफॉर्मेंस यदि करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सेलेंस नहीं आएगा। एक्सेलेंस तब आएगा तब आपके परफॉर्मेंस में लिटरल इंटरप्रिटेशन के अलावा लिबरल आउटलुक होगा। जब हमारा परफॉर्मेंस करने के कारण हमारा भाव ये रहेगा कि इससे ह्यूमैनिटी एट लार्ज इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, देन अल्टीमेटली दैट कर्मा बिकम्स द योगा। जो संसाधन ठाकुर ने हमें दिए हैं उसका उपयोग आप अपने लिए न करें, आप दूसरों के लिए करें। तो when we as a chartered accountant attesting any balance sheet of a professional, particularly PSU, bank, financial institutions in which the people at large have put the money, the onerous duty is cast on a professional. When they discharge attestation function, they must be excel in their performance. No ethical standards should be diluted. Transparency, honesty, integrity, and excellence, super standards must be maintained as a professional. Then only you can command respect amongst the people at large. इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आप देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम जीव का आकलन करना चाहते हैं तो एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो वी वांट व्हाट इज द गोल। हमारे सनातन धर्म में धर्म की व्याख्या करते समय भगवान वेदव्यास ने महाभारत के अंदर में इतना सुंदर वर्णन किया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जब आप कोई भी कार्य करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा इसका गोल क्या है। तो हमारे जीवन के भी क्या गोल है, सनातन धर्म बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये हमारे चतुष्टय हमारे भाव माने गए, ये हमारे गोल है, जीवन के उद्देश्य। उसी तरीके से हमारी ये व्यवस्था की गई कि इसको कौन कौन कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे यहाँ भी when we as a professional wants to do, then we tell that this is the audit function, it has to be done by audit department. This is income tax work, it has to be done by the people who are excellent in the income tax. This is the work, this pertains to the RBI and SEBI matters, it has to be done by the corporate peoples. Someone has to do in case of banking and other institutional work, that means in finance. सिमिलरली ठाकुर ने हमारे यहाँ पर भी सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्थाएं की, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की व्याख्या की। अगेन हमारे 4 का पिलर आता, प्रिंसिपल ऑफ 4। हमारे पहले आए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर हमारे आए स्टेजेस ऑफ लाइफ, और उसमें भी हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा डिवीजन ऑफ वर्क किया गया। इफ आई रियली वांट टू डू एवरीथिंग, आई विल बी बर्डन्ड। When we go to decentralized, the perfections comes, excellence comes, and the execution speed also has a greater pace. Similarly, हमारे स्टेजेस हैं कि कौन सा काम कौन कब करेगा। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारे आश्रम में विवाह, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये हमारे 4 आश्रम उसमें बताए गए। तो हमको कौन सा काम कब कब करना है, कौन काम कौन कर सकता है, ये हमारे सनातन धर्म के अंदर व्याख्या है। एंड देन व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टूल्स फ्रॉम विच यू कैन गेट द परफेक्शन। तो हमारे यहाँ पर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये हमारे मेथड्स बताए कि हमारे वेश क्या है। जैसे हमारे योग में भी है कि हमको यदि परमात्मा को प्राप्त करना है अल्टीमेटली योग में, तो कौन से रास्ते में तुम जा सकते हो। तो हमारे यहाँ चॉइसेस है। दिस इज द वेरी पर्टिकुलरिटी एंड स्पेशलिटी इन सनातन धर्मा दैट वी प्रोवाइड द चॉइसेस टू द यूजर्स। हमारे पास प्लेटर्स में अलग चीजें रखी हुई है,
माता आपको पुचका भी ऑफर करती है, चाउमीन भी ऑफर करती है, पिज्जा पर्जर भी देती है, रोटी भी देती है। जो स्टूडेंट, जो उसके बच्चे व्हाट्स जिस चीज को चाहें उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी एज ए प्रोफेशनल्स वांट टू एग्जीक्यूट द वर्क, डेफिनेटली वी फील हमको कब काम से ज्यादा उपरत होना है, कब हमको काम में ज्यादा लगना है, और कब हमको काम से टोटली डिटैच हो जाना है, so that the younger clans takes the charge and the batons won't go on this basis. तो हमारे ये 16 पिलर्स हैं, 16, जिसके अंदर में 4 हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 हमारे आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 हमारे डिवीजन ऑफ वर्क ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 हमारे योग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग और ध्यान योग। तो ये हमारे 16 पिलरों के ऊपर में हमारे सनातन धर्म की एडिफिस खड़ी। Similarly, in case of profession, when you execute any professional assignment, ultimately you have to follow these basics. यदि आप division of work नहीं करते हैं, if you don't delegate the work, if you don't take the proper tools to execute that professional work, ultimately you cannot have कर्मशु कौशलम. आपके पास जीवन में एक्सीलेंस आएगी ही नहीं। तो यदि हमको कर्मशु कौशलम प्राप्त करना है, एक्सेलेंस इन फील्ड लेना है, हमको नन्ही पालके वाला बनना है, हमको क्रिमिनल साइंस के अंदर में कपिल सिब्बल बनना है, हमको रॉकेट साइंस के अंदर में अब्दुल कलाम बनना है, तब हमें इन सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को, जो हमारे स्पिरिचुअलिज्म के सनातन धर्म के जो मेन कोर प्रिंसिपल्स है, उसको हमको आत्मसात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्म कल्याण के अलग अलग सोपान है, उसी को हम एक्सेप्ट कर करके आगे चल सकते हैं। अब देखिए, जब तक हम प्रोफेशनल बनते हैं तो हमारी ड्यूटी हमारे को प्रोफेशनल्स के साथ भी बनती है। हमारी नेटवर्किंग का जमाना, आज जैसे हमारे बीबीडी बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स संजीव सांगी took the charge as the president of BBD Park for 25-26. He gave a theme, NEST, that is networking and entrepreneurship, skill, and the most was the technology. हम जब तक टेक से भी नहीं बनेंगे, हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर स्किल हमारे अंदर में नहीं लाएंगे, हम स्किल का, ओनर्स का विकास नहीं करेंगे, कौशल का विकास नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ये सारे प्रिंसिपल्स हमें वेद प्रोवाइड करते हैं। हम देखिए, हमारे सनातन धर्म में स्पिरिचुअलिज्म में आप जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी आप एक्सेलेंस इन पर्टिकुलर फील्ड आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ अर्पण, तर्पण और समर्पण का आत्मसात करना पड़ता है। व्हाट इज अर्पण? अर्पण इज यू वांटेड टू रेस्पेक्ट योर सीनियर्स। हमारे यहाँ सीनियर्स के प्रति भाव भी ये है कि हम तत्वतः प्रणिपातेन, गीता के अगेन हम चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारा अर्पण फिलॉसफी का वर्णन किया गया, ठाकुर ने किया है। वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ना, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना चाहते हो, तो तुमको तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उसके पास जाना पड़ेगा। कैसे? भली भात दंडवत प्रणाम कर करके। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की प्रक्रिया सनातन धर्म में है। हम जब किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, तो हम दंडवत प्रणाम भगवान ठाकुर को प्रणिपात करते हैं। और सेवा करोगे तब सरलता पूर्वक, और उसमें भी क्रोध नहीं, यू कैन नॉट डिक्टेट योर प्रीचर, आप यू हैव टू बी मोर पोलाइट। तो आप सरलता पूर्वक परिप्रसन्नेन, तब आप सेवाया ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, तब आपको परमात्मा तत्व का भली भांति ज्ञान उस ज्ञानी महात्मा से तत्व ज्ञान का प्राप्त होगा। तो ये हमारी अर्पण फिलॉसफी है कि यू ऑलवेज पे रेस्पेक्ट टू सीनियर्स। हमारे सीए प्रोफेशन में क्या है, हम आर्टिकल सीट में जाते हैं। आर्टिकल सीट क्या है? व्हेन यू रियली अपीयर फॉर एग्जाम, साइमल्टेनियसली you take practical training,
अंडर योर सीनियर्स, अंडर योर प्रिंसिपल्स। तो ये हमारी अर्पण फिलॉसफी है। वी पे रेस्पेक्ट टू द सीनियर्स टू गेट समथिंग फॉर एक्सीलेंस इन हिज फील्ड्स व्हिच इज अल्टीमेटली बिलोंगिंग्स टू यू। ये हमारी अर्पण फिलॉसफी है। तो हमारा सीए प्रोफेशन इस बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ सनातन धर्म जो स्पिरिचुअलिज्म का है उसे हमेशा सिखाती है। आज किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप चाहिए, आइदर यू गो इन कंपनी सेक्रेटरी, you go on costing, you go even in law, all juniors has to work under seniors because they wants to have a perfection। हो सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने ज्ञान जरूर प्राप्त किया हो, लेकिन परफेक्शन उनको बिना सीनियर्स के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये अर्पण फिलॉसफी का जो सिद्धांत है कि आप हमेशा अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि जैसे हमारा अभी पितृपक्ष चल रहा है, आज अमावस्या है, तो हम हमारे पितरों को, पिताजी को, दादाजी को, परदादा जी को हम तर्पण करते हैं। तो तर्पण में फिलॉसफी क्या आती है कि हम उनको सम्मान देते हैं। तो अर्पण, तर्पण और समर्पण। समर्पण है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं उसका टोटल नॉलेज आपको प्राप्त करना होगा। यू हैव टू आइदर स्विम विद देम, यू हैव टू ऑब्टेन ऑल डिटेल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया है, तो हमारे यंगर क्लास को हैज टू बी गेट अडेप्टेबिलिटीज, बिकॉज जो हमारा सो कॉल्ड नॉलेज पुराने तरीके से ढर्रे रहा था, आज चैट जीपीटी के माध्यम से या एआई के डिफरेंट टूल्स के माध्यम से हमको एक्सेलेंस प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर में हमारे पुराने प्रिंसिपल्स को भी हमको आत्मसात करना होगा एंड गेट इट सिंक्रोनाइज्ड with the new technological world which is emerging, evolving, to get it adaptable to the new world, which is required। तो स्पिरिचुअलिज्म की जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, टू बी कॉमन, टू बी ऑनेस्ट, टू बी इथिकल, टू बी ट्रांसपेरेंट, एंड अनदर इज दैट वेल-बीइंग ऑफ द अदर्स, दैट इज नेटवर्किंग। CA has to work with company secretary, CA has to work with engineer, CA has to work with advocates, because in certain fields we require their skill to be imported in our executions of various professional assignments, then only we can get the desired results। तो हमारे यहाँ हमेशा संगम गच्छति की जो भावना रही है, हम साथ में चलें, साथ में बढ़े, और हमारा जो मुख्य मेन गोल है उसको हम अचीव करें with more and more excellence, with more and more कर्मशु कौशलम। तभी हमारे प्रोफेशन की रेस्पेक्ट रहेगी, प्रोफेशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों का आदर का भाव बनेगा, और हमारे प्रोफेशंस के अंदर में काम करने में जो आज स्ट्रेस लोगों के अंदर में है, जो अवसाद है, वो हटेगी। हम पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलेंगे, और अनंतो गत्वा जब हम भगवान के शरणागति में, क्या स्पिरिचुअलिज्म क्या बोलती है आपको? अल्टीमेटली यू गो टू ए मोस्ट डिवाइनल फोर्स, क्योंकि हम किसी न किसी परम सत्ता को मानते हैं। स्पिरिचुअलिज्म धर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म है, अपने आप को जानने का भाव है। इसमें कोई कंपैरिजन हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से नहीं है। ये हमेशा एलूफ ऑफ रिलीजन है, और एलूफ ऑफ रिलीजन के अंदर में हम जो कुछ भी हम रिलेशंस प्राप्त करते हैं, वी गेट फ्रॉम द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो पंच महाभूत हैं, चाहे वो अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जो हमारे पंच महाभूत का भाव, भगवान की जो व्यक्त संस्कृति है, भगवान का जो व्यक्त स्वरूप है, वो हमें हमेशा ये नॉलेज देता है। जैसे आप देखिए, उसका एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, that is the most temporal source of energy, that is Lord Sun, सूर्य। सूर्य हमें क्या ज्ञान देता है? सूर्य का दूसरा नाम है मित्र। हमारे संस्कृत में उसको बोलते हैं मित्राय नमः, रवये नमः, तो हिरण्यगर्भाय नमः, हम उसको बोलते हैं आदित्याय नमः। तो मित्र का भाव क्या है? मित्रता में कभी भी कोई फेवर एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तो सूर्य क्या डिस्चार्ज करता है हमेशा? आप देखिए, देयर इज नो वेकेशन। उसके कभी छुट्टी होती है क्या? 365 दिन में आज रविवार, हम तो हमारे घर में बैठ जाते हैं। लॉर्ड सन नेवर टेक्स एनी लीव। सिमिलरली इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल, व्हेन यू टेक एनी असाइनमेंट ऑफ योर क्लाइंट्स, आपके दिमाग में हमेशा उद्वेलन वही चलता रहता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, कौन सा केस स्टडी हमने किया था हमारे लाइफ में जो प्रोफेशनल, which can be made applicable here। तो even for 365, 24 days you are devoted to your work,
then you becomes the Mitraha, that is Lord Sun. And second, there is no discrimination. हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, और हम बहुत कम पैसे में, even in some assignments, we discharge our duty free of fees. Even for NGOs, NPOs, ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं जहां हमारे कई घंटे लगते हैं, कई रिसोर्सेज हमारे लगते हैं, हम उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि ये हमें पैसा दे रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा। एंड थर्ड इज नो एक्सपेक्टेशन। भगवान सूर्य में ये है, वो कोई राजा के ऊपर में ज्यादा रोशनी देता है, झोपड़ी पर कम, ऐसा नहीं। और कभी भी वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि आप उसको ग्रेटिट्यूड, यदि आप ग्रेटिट्यूड के भाव से, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में ही हमारी फल की इच्छा है, और ठाकुर यही कहते हैं कि जब कर्मयोग के भाव में तुम अपने आप को समाहित करना चाहते हो, तो इट मस्ट बी अनअटैच्ड। पद्मपत्र वे मामबसा, हे जीव, तुम जैसे लोटस लीव के ऊपर में जल का बिंदु उसे चिपकता नहीं है, अटैच नहीं होता है, उसी तरह से यू डू डिस्चार्ज योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एंड देन ओनली your work can be the yoga, and that is yoga है कर्मसु कौशलम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी कुछ और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज करना चाहते हैं तो मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। स्पिरिचुअलिज्म एंड प्रोफेशन। If anybody has any doubts, they can just type it in the chat box. विष्णु जी तुलसियान, निर्मल है क्या? निर्मल बोथरा, जी सर। निर्मल जी है? हाँ, कॉल पे तो है समय। हेलो। हाँ निर्मल, हाँ बोलो। बोलो, कोई आपकी कोई क्वेरी है या कोई नहीं, सप्लीमेंट्री? बहुत अच्छे से तुमने धार्मिक गीता से जोड़ के और हाँ सारा वर्णन किया है। ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा हमको कि तुमने उसको सीधा गीता से जोड़ा है, और गीता अपने हाँ, जीवन का सार है। उसके अलावा सारा सारा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी में काम आए। हम्म, तो रियल में गीता हम लोगों को जीने का मार्ग सिखाती है, कर्म करने का राह दिखाती है। हम्म, रियल में कोई ग्रंथ है तो गीता गीता। बहुत ही अच्छा है। तुमने उससे जोड़ के प्रोफेशन को जोड़ा है, हम्म, स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। So there's no question, sir. So I would हम्म just like to thank CA Nirmal Kumar Bothra and Rajendra Kumar Vyas for sharing such a valuable insight today on the beautiful connection between spirituality and profession. Your words have reminded us that professional success is most meaningful when guided with inner values, balance, and purpose. On behalf of everyone present, I extend our heartfelt, grateful attitude to you for inspiring us with your wisdom and experience. Thank you so much for attending today's session and making this a truly golden charcha. Thanks. It is my pleasure to be associated with ICI in every endeavor. थैंक यू। थैंक यू राशि। थैंक यू व्यास Thank you. जी। So there's Yeah. a question for Mr. Bothra on how he manages tax audit pressures. थ्रू स्पिरिचुअलिज्म व्यास ने बहुत अच्छे से समझाया है कि बी पेशियंस, बी काम, और आपको पूरा वर्क को डिवाइड करके चलना है।
आपको हाँ। डेलीगेशन इज मस्ट, क्योंकि सारा काम मैं खुद करूंगा नहीं, आपके स्टाफ को जो जिसमें एक्सपर्ट है, जो ऑडिट में एक्सपर्ट है, जो टैक्सेशन में एक्सपर्ट है, जो जिस एरिया में आपको डेडिकेट करके इस काम को टाइमलाइन में करना है, तो विद थोरो नॉलेज आपको पूरा वॉच रखना है, पूरा डेलीगेशन करना है। ये नहीं कि कहीं गलती हो जल्दी में, ये नहीं करना है। अपने को पूरा का पूरा काम पेशेंसली एकदम धैर्य के साथ करना है। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। नहीं, किसका प्रश्न था ये? सर अनोनिमस है, नाम नहीं शो कर रहा है। नहीं, मैं एक थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट लूंगा। जी सर, बिल्कुल। जिस भी बंधु ने प्रश्न रेज किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसको मैं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिंटरलैंड जो ठाकुर ने बनाया है, ये तो जोर जबरदस्ती, जैसे बोलते हैं ना, सीए की डिग्री ठाकुर ने हमको रोजी रोटी के लिए दी थी। मेरा है अध्यात्म का ही भाव। तो महाभारत के अंदर में इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न आया यक्ष संवाद के अंदर में। उसमें भगवान नारायण ने बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया, वो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। इफ यू वांट टू बी एक्सीलेंट, हम कैसे बन सकते हैं, हम परफेक्ट कैसे बन सकते हैं, तो उसमें उन्होंने, ठाकुर ने 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स को और बनाया कि हाउ यू कैन बिकम इवन ग्रेटर देन लॉर्ड। भगवान से भी ऊपर जीव कब बन सकता है? उसमें है, फर्स्ट इज द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जब तक हमारे अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, तब तक हम कोई भी कार्य संपादित कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट एग्जीक्यूट। क्योंकि जब भी आप कोई काम लेते हो और जब आपके मन में उसके प्रति पूर्ण डिटर्मिनेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, डेडिकेटेड टू दैट वर्क नहीं है, तब तक आप वो काम को आगे बढ़ाइए। उसमें सबसे बड़ा बेसिक पोस्टुलेट रहता है आत्मबल। तो जिसका आत्मबल सबसे स्ट्रांग होता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। और वो भी कॉन्फिडेंस अपने, कोई दूसरे पर नहीं। दैट इज, जब तक हमारा आत्मविश्वास स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान कहते भी है गीता के 10वें अध्याय में, अगेन मैं आपको गीता से जोड़ता हूं, कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान की विभूति योग का वर्णन है कि हमारी ये जो 10 इंद्रियां हैं, उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसमें मन मेरा स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि ही भगवान बोलते हैं कि इन 10 इंद्रियों में मन मेरा विभूति है। यदि मन है, उस पर आपका कंट्रोल हो गया, मन आपके हिसाब से चलने लगा, तो आप जो भी कार्य करोगे उसको ठाकुर करवाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और जिसका मन कमजोर होता है, वही काम को करता नहीं है, और दीर्घ सूत्री बनता है, और बीच में स्टार्ट करता, छोड़ करके भागता है। द्वितीय भगवान ने सूत्र दिया, इज द रिलायंस ऑन अदर्स। आप दूसरे पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट लेते हो, आप अपने आप कार्य कर नहीं सकते। जैसे निर्मल जी ने कहा ना कि व्यास ने अपने प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया कि आप अपने यहाँ डेलीगेशन ऑफ वर्क करो। आज धीरूभाई अंबानी के लड़के मुकेश और अनिल अंबानी इतने बड़े एम्पायर को चला रहे हैं, जहां लाखों करोड़ का टर्नओवर चल रहा है। दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द टीम। तो उसमें काम हमेशा बांटा गया है। तो बांटने में आपको विश्वास दूसरे पर करना होगा। हो सकता है ही मे नॉट बी एग्जीक्यूटिंग द वर्क 100% perfectly as you can do, even up to 98%, 90% is it done by your juniors as a professionals, आपका बहुत ज्यादा टेंशन कम हो जाएगा। इसलिए उसमें रिलायंस ऑन अदर्स इज। और थर्ड जो बहुत डिफिकल्ट पोस्टुलेट भगवान नारायण ने यक्ष संवाद में युधिष्ठिर को कहा है, इज द पेशेंस, धीरज। हम इतने उतावले हो जाते हैं, हम वी बिकम रेस्टलेस। तो जब तक हमारा धीरज खो गया, क्योंकि हमारे पूरे व्यक्तित्व के अंदर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोस्टुलेट यदि हमारा पर्सनैलिटी का है, वो है धीरज का, धैर्य का, पेशेंस का। तो ऑल द 3 एंसेस मेक द मैन। 1 एंस इज कॉन्फिडेंस, थर्ड इज रिलायंस, एंड थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट, दैट इज पेशेंस। 3 एंसेस मेक द मैन इवन ग्रेटर देन लॉर्ड। यदि आप में ये तीनों गुण आ गए, तो आप ठाकुर के बराबर। तो हमारे यतियों में, सन्यासियों में विशेष रूप से जो अद्वैत फिलॉसफी को मानते हैं, क्योंकि जब हम सन्यास प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर भी हमारे 2 थॉट्स हैं, एक अद्वैत और एक अद्वैत। द्वैत है ड्यूट फिलॉसफी में, जैसे आप गाना सुनते हैं ना, एक लड़का एक लड़की गाना गाए, उसको हम बोलते हैं ड्यूट।
और जब एक सिंगल गाता है उसको बोलते हैं सोलो। तो ड्यूट फिलॉसफी में हम जीवात्मा को और परमात्मा को दो मानते हैं, आत्मा अलग परमात्मा अलग। और अद्वैत के अंदर में हम परमात्मा और आत्मा को अलग मानते ही नहीं, अभिन्न मानते हैं, एक ही है, वो सोलो है, उसी का मैनिफेस्टेशन है, वो जीव के अंदर में आया। जैसे गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर ने कहा ममेवांशो, मेरा ही अंश, ममेवांशो जीव लोक सनातन है, जितने सनातन में तुमको जीव दिख रहे हैं उसमें मेरा ही अंश है, इसीलिए हम अमृतस्य पुत्र बोलते हैं। तो हमारे अद्वैत फिलॉसफी के अंदर में हमारी जो शंकराचार्य परंपरा है उसमें बोलते हैं शिवोहम शिवोहम। जब आप इन तीनों एंसेस के साथ में चले जाते हैं तब शिव में माने ठाकुर में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं ही शिव हूं, शिवोहम, मैं जीव नहीं हूं, अमृतस्य पुत्र, मैं जब अमृत का पुत्र हूं तो मैं भी नारायण हूं, जब नारायण का अंश हूं। मेरे दादाजी यदि इतने पावरफुल थे और मैं उनकी बेटी हूं, पोती हूं, पड़पोती हूं, तो मैं भी उतनी पावरफुल हूं। जितने उनके पास में ग्रीड का पावर पावरफुल चल रहा है वो मेरे साथ में भी है, इसलिए वो किसी कार्य को करने में डगमगाता नहीं है। तो जिस बंधु ने यह प्रश्न रेज किया वो बहुत सुंदर प्रश्न रेज किया है कि जब तक आपके अंदर में कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, reliance on others by way of delegating the executions of the work, and third is the patience, you cannot excel in your work. And the professionals require excellence. All the three basic postulates of the Yaksha Samvada of Mahabharata has to be implemented in entirety in your professional work. Thank you, sir, for such a राधे beautiful राधे। explanation. एक और क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि वन एज अ सीनियर हाउ डू यू हेल्प यंग प्रोफेशनल्स अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी? आर वी टेकिंग एनी स्टेप्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टैक्स ऑडिट? द वर्क प्रेशर इज enormous. देखिए ये टैक्स ऑडिट का प्रेशर आप ठाकुर जी पर छोड़ दो, आप अपना कार्य करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जहां तक गीता का सवाल है, मैं गीता मंथन की क्लासेस लेता हूं और ठाकुर जी की कृपा से भगवती राधा रानी की महीने के अंदर में हमारे 2 सत्र बीबीडी बाग प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा जूम के ऊपर में किए जाते हैं, रविवार को 11 बजे से 12:30 बजे तक। उसमें हम प्रश्नोत्तर भी लेते हैं और उस गीता मंथन में हमारा विचार ये रहता है कि हम उसका डिटेल्ड मंथन करते हैं। कभी भी एक अध्याय 1 या 2 सत्रों के अंदर में नहीं होता है, कभी कभी तो हमारे एक एक अध्याय के अंदर में 10-10, 12-12 सत्र भी गए हैं। हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कर करके और एक एक श्लोक का भाव जितनी भगवती राधा रानी ने मूरे कपाल के अंदर में रखी है, मैं सारा उसी की कृपा के प्रसाद के स्वरूप में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। हमारा लास्ट सेशन गीता के 4th अध्याय में जहां अवतारवाद है, भगवान ने अवतार क्यों ग्रहण किया था, उसकी चर्चा उसमें हुई थी। उसमें हमने श्लोक नंबर 1 से 9 तक 1.5 घंटे के अंदर में डिटेल्ड हमने उसका मंथन किया था। आगे का हमारे अगले रविवार को हम 4th अध्याय के अगले भाव को भी लेंगे और इस तरीके से, और वो हमारी सारी पुरानी भी वीडियो आप लोग बीबीडी बाग स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल के अंदर में देख सकते हैं। उसमें अच्छी व्यूअरशिप भी है और कोई भी आदमी उसमें आत्मसात करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारा यही भाव रहता है कि हम जितने भी प्रोफेशनल, चाहे वो यंगर क्लान के विशेष रूप से हैं, क्योंकि दे आर वेरी रेस्टलेस, मैं उनको कहता हूं कि उनके अंदर में धीरजपना नहीं है। जब तक धीरज नहीं रहेगा तब तक आप अपने काम करने की क्रियाओं के अंदर में, उसके संपादन में, उसके एग्जीक्यूशन के अंदर में आपसे त्रुटियां होगी, गलती होगी। और कारण भी है कि धीरज आता कैसे है, इसका भी भगवान ने श्रीमद् भागवत के अंदर में डिटेल्ड वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि जीव जब तक भक्ति से नहीं जुड़ेगा, भक्ति क्या है? सरेंडरिज्म। भक्ति क्या है? हम परमात्मा शक्ति का बोध कि देयर इज ए स्पिरिचुअल फोर्स, देयर इज ए डिवाइनल फोर्स। आप उसको खुदा कहिए, आप उसको गॉड कहिए, आप उसको भगवान कहिए, अनंतो गत्वा कोई ना कोई शक्ति है जो हमें चला रही। उसके सामने जब तक आप नतमस्तक नहीं होंगे तब तक आप कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसमें भी ठाकुर ने एक अपना श्लोक के अंदर में भाव प्रतिपादित किया है
भक्ति रूपते पुंसः शोकः मोह भयापः। जो जीव भक्ति में प्रवेश करता है वही शोक से, मोह से और भय से डिटेच हो सकता है। शोक ऑलवेज बिलोंग्स टू पास्ट और मोह परटेन्स टू प्रेजेंट एंड भय परटेन्स टू फ्यूचर। तो आपको तीनों कालों के ऊपर में यदि विजय प्राप्त करना है तो हे जीव तुमको भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब तक तुम्हारी शरणागति में, प्रपन्नता में, भगवान के प्रति विनम्रता के भाव में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक तुम शोक से, मोह से और भय से हमेशा पीड़ित रहोगे। क्योंकि हमको ये लगा अरे हमने तो 50 करोड़ रुपया कमा लिया, कल इनकम टैक्स वाला आ गया तो हमेशा हमारा पास्ट का सेंस, हमने आज 100 करोड़ कमा लिया, हम 500 करोड़ क्यों ना कमा ले, 18 कारखाने या 20 क्यों ना हो जाए। आज तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनी हूँ, कल मोदी जी कैबिनेट कर रहे हैं तो मेरे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बना दे। तो ये मोह कंटिन्यूअस और भय है कि अरे हम तो इतना कर लिए, आज हम इस पद में तो है, कब कैबिनेट नहीं सफल होगा, प्राइम मिनिस्टर हमको इस पद पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो भय है। फ्यूचर हैपनिंग्स में जो होने वाली चीज है उसके प्रति जब हम आशंकित रहते हैं, वी आर डाउटफुल ऑफ दोस हैपनिंग्स, दैट इज परटेन्स टू फ्यूचर, दैट इज भय। तो शोक, मोह, भय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों से हमको यदि हटना है आपको अध्यात्म के रास्ते में जाना पड़ेगा। आइदर यू गो टू कर्म योगा, यू गो टू भक्ति, यू गो टू ज्ञान और यू गो टू ध्यान। मेडिटेशन जो हमारे ब्रह्म कुमारी करवाती है, चाहे रामकृष्ण मिशन के मठ करवाते हैं, उनके अंदर में भी, योगानंद आश्रम के अंदर में भी करवाया जाता है। वो ध्यान की मेडिटेशन आपका अल्टीमेटली भक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए हमको यदि प्राप्त करना है तो मैं उन बंधु से यही कहूंगा कि टैक्स ऑडिट एक्सटेंशन के भाव को छोड़े, काम अपना करें और भक्ति से भगवान के ऊपर में अर्पित कर दें। मेरी गट फीलिंग कहती है कि नेक्स्ट वीक में आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। आप चिंता का भाव, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूं, भगवती राधा रानी बुलवा रही है, आप इस भाव को लेकर के चलें। Thank you, sir. Thank you so much. I would like to again thank both of the speakers for joining us today. And I think we are already past the time, so we should end the session here. Yeah, we should end it. Yeah. Thank you so much. Thank you, thanks. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं नेशन को। हाँ, उनका जो 5 o'clock से स्पीच था। हाँ, 5 बजे। ठीक है सर, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अपने सपने हैं इंसान सरकार में आबादी है जो 12 लाख हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो इतना बड़ा बदलाव